everybody, Aisha the side. Welcome back to my channel. I'm sorry for not uploading any videos for like 5 or 6 days now. I was quite busy, as I told you guys. I was shifting and I was relocating, so that's why that there was a lot of stuff I need to buy, and then I need to like shift my stuff, my all of my clothes and all that. So that took a lot of time. Also, my classes started, so they started on 10th of February. Yes, so it is going good in college, and a lot of new students are coming now. The semester has started, so rest of the courses has also started now, and lot of new students, we can see them in college now. So I have shifted to this very beautiful area in Christchurch called Woolston. uh, as you can see, this is the road that goes to my house. And then if like, I really like to show you guys those beautiful hills near the house. We can see it from here only, so they are very beautiful. uh, so yes, it has been a hectic week. I could not record much, but this video which I'm going to make today, this is about bank and IRD number. So I got my bank open, like my bank account open in ANZ Bank, that is the Australia New Zealand Bank. So my bank account was already open when I was applying through visa, and I just needed to activate it so that I can access my funds. uh, what happened here is that to open a bank account, you need to get a address proof. That is very important here. To open a bank account, you need to have address proof, like in India, same here. So for that, I needed to shift first, and I got my bank account like verified on the university letterhead. I changed my address at the university, got it printed out on a letterhead, and submitted into the bank. So I will go step by step what you have to do, how to open a bank account, and what is IRD number. Okay, so let's start the video. So अगर मैं बात करूँ बैंक्स की, तो यहाँ पे हैं दो बैंक्स, ANZ और BNZ. मेरा अकाउंट ANZ में खुला है. तो होता क्या है, दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप पहले से भी अकाउंट खुलवा सकते हो और यहाँ आके भी खुलवा सकते हैं. So what happened when you apply for a visa and you have taken loan from the bank? Sometimes sometimes bank approve your living expense as well, and some people take that. So those living expenses has to be transferred to a New Zealand bank before your visa apply, like approved. तो होता क्या है कि वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर्स विल मेल यू कि हाँ भाई, आप अब यूनिवर्सिटी में फ़ीस ट्रांसफ़र कर दो, एंड ANZ या जहाँ पे भी आपको लिविंग एक्सपेंस डालने हैं आप डाल दो. ठीक है. तो when that happen, then you have to mail that bank, open your account and submit all your documents with them, mail them, and once it is approved, they will open your account. This take around 2 days, and once your account is open, you have to transfer that amount into that account. अब जब वो अकाउंट में पहुंच जाते हैं पैसे, then they will freeze that amount. ठीक है. तो होता क्या है कि जब आप यहाँ लैंड करते हो, तो यहाँ पर आप उन पैसों को एक्सेस कर सकते हो, नॉट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम हेयर. सो जब आप यहाँ लैंड करते हो,
तो आप बैंक में ईमेल डालते हो कि भाई मैं यहाँ लैंड हो गया हूँ और मुझे एक अपॉइंटमेंट लेनी है, मुझे अपना बैंक खोलना है, मतलब एक्टिवेट कराना है ताकि मैं अपने फंड्स को एक्सेस कर सकूँ। अब बैंक आपको अपॉइंटमेंट डेट देगा और आपको बुलाएगा। जब बैंक आपको बुलाता है तब आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगेगा। पहला डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा आपका आईडी प्रूफ, दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा आपका एड्रेस प्रूफ एंड तीसरा डॉक्यूमेंट मांगेगा वीज़ा। तो अगर हम पहले डॉक्यूमेंट की बात करें दैट इज़ आईडी प्रूफ, तो वो होगा आपका पासपोर्ट, बट ऑब्वियस। एंड सॉरी, अगर हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें वो है आपका एड्रेस प्रूफ। नाउ एड्रेस प्रूफ में होता क्या है, एड्रेस प्रूफ में इनको चाहिए कि आपके नाम के साथ आपका एड्रेस मेंशन हो कि आप कहाँ रहते हो, दैट इज़ योर एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू गेट एन अकोमोडेशन। ओके, ऑल्सो इफ़ यू आर लिविंग in Airbnb like I was living, you can do this, that you like get an application, written application on the letterhead of the Airbnb that you are living in at this place and your time is like इतने दिन से इतने दिन रहना है, और मतलब ये सारी चीज़ें you have to mention into that letter. Then your owner will sign it, Airbnb owner will sign it, and then you can take that letter to the bank. But that is quite a hassle, so I did not opted for this process. So मैंने जब मैं लैंड हुई तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, मैंने अकोमोडेशन लिया, उसके बाद मैंने बैंक ओपन किया अपना। तो वो जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, हमने बात कर ली फ़ोटो आईडी की, फ़ोटो आईडी आपका पासपोर्ट हो गया। एड्रेस प्रूफ आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए जहाँ आप रहोगे। अब उसकी वेरिफिकेशन कैसे दोगे, मैंने कैसे दिया, मैं यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एड्रेस चेंज करा दिया। एंड जब एड्रेस चेंज कराया आई आस्क्ड देम टू प्रिंट इट ऑन अ लेटर हेड, ताकि आई विल गेट my name printed on it and my address printed on it, so that will become my address proof. So I took that. You can also give utility bill or any other bill in your name to the bank. और अगर आपको और इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप बैंक को पर्सनली मेल या कॉल भी कर सकते हो। दे आर वेरी एक्टिव एंड उनका कस्टमर केयर इज़ वेरी एक्टिव, सो वो ईज़िली आपको बता देंगे कि क्या आपको डिटेल लाइक क्या आप दे सकते हो फॉर एड्रेस प्रूफ। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट the last one, that is your visa, that is obvious that you have to show your visa. A valid visa is required for the bank opening, bank account opening. Now BNZ वाले के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट आई नो दिस दैट BNZ में आपको जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है वैसे आप ऑनलाइन अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे, भरोगे, अकाउंट खोलोगे और फिर आप BNZ ब्रांच में जाओगे अपने बाकी के प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया तब की बात जब हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं एंड इंडिया से हम अपने पैसे भेज रहे हैं बैंक में, तो हम इस तरह से ओपन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपके पास खुद के पैसे हैं, खुद का लिविंग एक्सपेंस है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे न्यूजीलैंड में, अपना एड्रेस प्रूफ करोगे पहले अरेंज, क्योंकि एड्रेस प्रूफ इज़ अ मस्ट। ठीक है, एड्रेस प्रूफ अरेंज करने के बाद आप जाओगे बैंक अकाउंट में, बैंक वालों से बात करोगे कि आपको अकाउंट खोलना है एंड वो ऑन द स्पॉट आपका अकाउंट खोल देंगे। वही 3 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो कि मैंने आपको उस पे बताए, पासपोर्ट, वीज़ा एंड एड्रेस वेरिफिकेशन लाइक एड्रेस प्रूफ। तो वही 3 डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेंगे नॉर्मली जाने में। तो ये 2 प्रोसेस है, इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो और ऑन द स्पॉट आपको कार्ड भी मिल जाता है, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है एंड कोई झमेला नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप
का अपॉइंटमेंट, लेकिन आपको पहले से मेल करके एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने तारीख को आपकी ब्रांच में आना चाहती हूँ बैंक अकाउंट के लिए। या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो कि आप डायरेक्ट चले जाओ बैंक में और बात कर लो और अपना बैंक अकाउंट खोल लो। ठीक है, ये हो गई बात बैंक अकाउंट की। अब बात करते हैं आईआरडी नंबर की। आईआरडी नंबर होता क्या है? आईआरडी नंबर जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है, वैसे न्यूजीलैंड में आईआरडी नंबर होता है। तो आईआरडी नंबर ज़रूरी है आपके लिए, ताकि जब आपको पेमेंट मिले, जब आप जॉब पे जाओ, आपको पेमेंट आए ऑनलाइन, तो वो आपके टैक्स भरेगा, लाइक उसकी वजह से आप टैक्स भर पाओगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल में टाइप करो आईआरडी ऑनलाइन, मतलब आपको आईआरडी भरना है, आईआरडी अप्लाई ऑनलाइन। एक साइट आ जाएगी, आईआरडी की साइट आ जाएगी, और वहाँ से आपको फॉर्म भरना है अपना पूरा। आप भरोगे अपना नाम, अपनी डिटेल, और वहाँ पे वो आपसे मांगेगा वीज़ा एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन नंबर डालोगे, that will catch up all your details, that will show all your details on the application form, and if you want to change something on that, you can change it. ठीक है, so जब अगर okay, now I need to tell you guys this point, that when you apply for a IRD number, it asks for a bank account. Fine, लेकिन अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दो, बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो बता देना है कि बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई करो, बैंक अकाउंट नहीं है मेंशन करो, टिक करो, मतलब चूज़ करो वो ऑप्शन, और आगे प्रोसीड करो और सारी डिटेल भर के सबमिट कर दो। आई थिंक मेरा आई अप्लाइड late night, like around 10 to 11 p.m. and next morning I got my RD number. Now, अब इससे क्या होगा? अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो IRD नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा, जब आप अपना बैंक का अकाउंट खोलवाने जाओगे तो आपको वहाँ पे अपना IRD नंबर बताना पड़ेगा, एंड वो आपके IRD नंबर को आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड कर देंगे। सो इट्स प्रिटी सिंपल, एंड दैट प्रोसेस आई विल ट्राई टू अपलोड द प्रोसेस ऑफ IRD सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए उसको समझना। So yeah guys, this is what I was talking about. You have to simply go to Google and write IRD apply online, and this will take you to a site called irdgovernment.nz, and यहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा। Just scroll down and get to the third point, apply online. Then you choose I'm applying for myself and then click next. Now here you have to fill your surname, birth date, passport number, passport expiry date, and your immigration New Zealand application number. So जब यहाँ पे आप consent दोगे, उसके बाद जब आप next दबाओगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल वो वीज़ा उससे ले लेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप मैं आगे नहीं जा सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फॉर्म भर चुकी हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपकी सिंपली सारी डिटेल्स फिल होंगी। सो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि जब आप लैंड करो न्यूजीलैंड में तो एज सून एज़ पॉसिबल इसको करा लो। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपके पास बेसिकली वर्किंग आवर्स होते हैं कि आप इतने घंटे काम कर सकते हो या इतने घंटे काम कर सकते हो हर हफ्ते। तो उससे ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप जॉब पे लगोगे और आपका पेमेंट होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एंड आपको ज़रूरी है, IRD नंबर इज़ वेरी नेसेसरी, मतलब इट्स मैंडेटरी टू हैव, फाइन, जब भी आप जॉब पे जाते हो।
तो उससे क्या होगा, टैक्स कटिंग जो भी होगी वो वहाँ पे वो होगा. सो these are the 2 points which I wanted to discuss in this video. Abhi I am also applying for some jobs, and let's say कि somewhat चल ही रहा है बस. सो आई होप कि मेरी जॉब जल्दी लग जाए तो थोड़े एक्सपेंसेस मैनेज करना ईजी हो जाएगा. एंड आई होप यू गाइज आर प्रेइंग कि मेरी फैमिली यहाँ जल्दी आ जाए मेरे पास. एंड आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज वन थिंग. देयर इज दिस apple tree here near my house. If you can see, I want to show you guys this. Like, if you can see these apples, see, they are still like in the green phase, or I think they are the green apples. So one thing more I wanted to show you guys, but let's see, I'll show you that in the next video. So let's wrap this video up. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. And if you like my video, please subscribe, like and share, and try to share it with your family, friends जो भी यहाँ आने की ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो. एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूजीलैंड. वैसे तो मैं बनाती रहूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ, आई कैन चूज़ दिस टॉपिक नाउ. सो थैंक you guys for coming, and let's see you in the next video. Bye.